Good morning, dear students. I welcome today Dr. Emma Sangvi sir, our today's resource person on the topic of data visualization tools. And in that, a tabular tool, sir is going to give a detailed highlight. And if you want to do the tabular tool hands-on, sir will going to share all the steps also, how to run and make a proper data visualization in a tabular tool. Sir has taken 100 plus expert talk in SNJB and out of the SNJB also. And sir has done a certification on Udemy on Tableau also. So this is also recommended to you all student. If after this session, if you like register on a Udemy and complete this course, it will be an value addition in your resume also. So without wasting a time, I welcome sir and I hand over a mic to you, sir. Thank you, madam. Yes, I am Can you make me stopping. host? Yes, sir, I will do it. Good morning, friends. Hope the screen is visible. Can anyone will confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So thanks to Professor Bhavna Kiusra for giving me this opportunity to discuss with you all regarding this data visualization tools. When I'm using word data, then the word visualization, and then the tools. So for that, I'm giving you one example, and based on that, we will move ahead. So let's assume that what is happening every day, we are conducting your attendance, right? Your attendance has certain fields, like if you observe here, I don't know whether it will be visible to you or not, but I will try to magnify it. You can understand that here it is timestamp, which is coming by Google Form itself. Then there is date, then email ID of every students, those who are marking their attendance. Division, this may not be applicable to final year students right now, but it is applicable to second year and third year, where students from third year computer have division like A and B. Then they have their roll number, name, then what you learn from today's lecture, one of like short feedback, WhatsApp number, and the comment. So these many fields are there. And dear students, this is what the live data that you can see, and the entire data, I must show you that till date, it is total records are 2,404, means 2,404 records which are there. Now, if I tell you that, suppose this is what the database that you have, and based on this database, you have to compute something. Okay. Based on this particular database, you have to compute something. यानी आपको ये देखना है कि A division से कितने students रोज के attend कर रहे हैं, B division से कितने students रोज के attend कर रहे हैं. तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा programming वगैरह आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा. And finally, the things will be visible like this. Okay. Finally, the things will be visible like this. यदि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो भी है वो नजर आएगी. Okay. For example, यहाँ पर आपको दिखाई देगा A division and B division. Here you will get date, means यहाँ पर 5th of October 54 students were present out of A, 63 students were present out of what? B division. And which 63 students were there? Simply double click on that and you will get what? All the details of that 63 students. See that here I'm getting entire details of this 63 students. So friends, we are getting such type of raw data. Okay, we are getting such type of raw data. Based on this raw data, okay, this raw data may not give us any sort of information. This is simply master data. Okay, और ये particular data में हमें कोई analysis नहीं करते आएगा, इसके ऊपर से हम लोगों को कुछ conclusion नहीं निकालते आएगा. यहाँ से सिर्फ एक ही conclusion निकालते आएगा कि इतने number of records मेरे पास है, लेकिन बाकी जो भी कुछ conclusion निकालना है उसके लिए काफी calculation हम लोगों को करना पड़ेगा. ओके, तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसा रिकॉर्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या कंपैरिजन करते आएगा? सी दैट based on this, see that this is what the graph, okay, it is visualized by using graph, and you can see that A division, B division, here it is 54 students, here it is 63, here it is 54, here it is 66, 67, 55, 67, 56, 62. So based on this, I can give the comment that division B students are more sincere than division A students.
कैन आई कमेंट लाइक दिस? यहां पर भी दिखाई दे रहा है ना आपको 54 63 54 67 55 67, यानी क्या बी डिवीजन के जो स्टूडेंट्स है दे आर मोर अटेंटिव देन व्हाट दी ए डिवीजन स्टूडेंट्स. आर यू एग्री विथ मी? कंक्लूजन निकल आएगा स्टूडेंट्स? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, sir. हाँ, तो ये कंक्लूजन Yes, sir. जो भी राइट, तो ये कंक्लूजन जो भी हम लोग निकाल रहे हैं वो आपको ये वाले डेटा पर से आएगा क्या निकालते हैं? इसके ऊपर से कोई कंक्लूजन दे पाएगा क्या? यदि ये सामने दे देता हूं मैं आपके, तो इसके ऊपर से कंक्लूजन देते आएगा कि आपको इमीडिएटली? नहीं देते आएगा. इसका एनालिसिस करना पड़ेगा. ओके, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा और इस एनालिसिस में फिर आप लोगों को ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेटा जो भी हो आपको दिखाई देगा. सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. ओके, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. ये डेटा विजुअलाइजेशन आपको बहुत सारी, क्योंकि मैं यहां पर भी देखता हूं तो यहाँ पे आपको काफी हॉरिजॉन्टली आगे 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 जाना पड़ेगा, तब जाके सारा रिकॉर्ड मिलेगा. इंस्टेड ऑफ दैट आप यदि एक ग्राफ जनरेट कर देते हैं, 2 कॉलम्स आएंगे, एक ए का एक बी का, और यहीं पे पूरा डेटा आप लोगों को वन स्ट्रोक जो भी है वो क्या होगा, विजुअलाइज करते आएगा. सो भले ही ये एक बेहतर समरी था, लेकिन इससे भी बेहतर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, ये वाला ग्राफ जो आप लोगों के सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, क्योंकि वन स्ट्रोक हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन जो भी हो क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा विजुअलाइजेशन का पावर जो भी है वो समझ पाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. सिमिलरली आई कैन कोट यू वन मोर एग्जांपल. फिलहाल इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में मेंबर नंबर है, नाम है, पिन कोड है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सिटी है और स्टेट है. और मुझे सिटी वाइज क्या करना है, एनालिसिस करना है. मुझे सिटी वाइज कितना काउंट है ये चाहिए. फिर से बहुत ज्यादा क्वेरीज आपको लिखना पड़ेगा. तो एक छोटा सा डैशबोर्ड मैंने बनाया, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये अहमदनगर के 60 मेंबर्स है, अमरावती के 98 मेंबर्स है, औरंगाबाद के 47 मेंबर्स है, एंड सेम इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ्स. तो दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि ये यहाँ पर जो डेटा था ये लगभग कितने स्टूडेंट्स का है, कितने मेंबर्स का है. तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये लगभग 1100 मेंबर्स का है. तो आपको वो वाला इंफॉर्मेशन जो भी है इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिंपली समरी जो भी है बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स दैट यू कैन डू. I think the name of your subject itself is saying that you need to do some analytics, and that analytics is possible by using one of the technique, and that technique is none other than what your pivot table. Okay, तो आप pivot table जो भी है ये आप लोगों को यदि आता नहीं होगा तो आप लोग YouTube के ऊपर जा सकते हैं और YouTube के ऊपर आप लोग pivot table दे सकते हैं. ओके, pivot table यहां पर आप डालिए और यहां पर आप मेरा नाम डाल दीजिए आगे. ओके, तो आप लोगों को एक वीडियो आएगा पिवट टेबल का. ये वाला वीडियो जो भी है इसका लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूं. ओके, ये आप लोग जरूर देखना. आप लोगों को इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि किस तरीके से इतना बड़ा डेटा जो भी है ये 1 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से विजुअलाइज करा सकते हैं. तो मैं आपको इसका एक डेमो देने जा रहा हूं, लाइव डेमो. ओके, वो डेमो क्या है उसका वीडियो मैंने आप लोगों को डाला हुआ है. मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं पूरे डेटा को. आई एम सिलेक्टिंग एंटायर डेटा. मुझे सिटी वाइज क्या करना है, एनालिसिस करना है. देखिए कितना समय लगता है. मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं. जैसे ही पूरा डेटा सेट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1100 प्लस रिकॉर्ड्स इसमें है. ये पूरा डेटा मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं. सी दैट 108 रिकॉर्ड्स आर देयर. आई हैव सिलेक्टेड एवरीथिंग. उसके बाद मैं डेटा पर जा रहा हूं. कहां जा रहा हूं मैं, डेटा पर. Then I have pivot table. I'm going there. New sheet. Yes, I'm telling that I have to create new sheet. तो इस शीट का नाम मैं दे देता हूं टेस्ट पर्पस, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं. यहां पर ये ब्लैंक आया हुआ है. ओके, तो मुझे रोज चाहिए है तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं रोज. रोज में मुझे फिलहाल क्या चाहिए, नेम ऑफ सिटी. सो मैंने सिटी का नाम यहां पर दे दिया. तो आपको यहां पर दिखाई देगा यहां पर सिटी का नाम जो भी वो आ चुका है. और मुझे काउंट चाहिए कि कितने ईमेल आईडीज है. तो मैं वैल्यूज में जाके यहां पर इसका ईमेल आईडीज का काउंट दे रहा हूं. तो यहां पर आपको दिखाई देगा. देखिए दोस्तों, ये वाला जो भी काम है ये कितने देर में हो चुका है आप समझ सकते हैं. दिस इज हार्डली डन इन व्हाट, कितने समय में हो गया, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट. एनालिसिस इज रेडी. इसको लेके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. गो ऑन दैट, क्लिक ऑन चार्ट, योर ग्राफ विल बी रेडी. इसको प्रॉपरली आप विजुअलाइज करा सकते हैं एंड दैट यू कैन डिस्प्ले.
सो फ्रेंड्स, दिस वे वी कैन एबल टू वर्कआउट, और आगे जो भी कुछ मॉडिफिकेशंस वहां पर होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक स्मॉल वे है डेटा विजुअलाइजेशन का, या एनालिसिस करने का, या डेटा का समरी जो भी है वो डिस्प्ले करने का, एंड दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग पिवट टेबल, जिसका वीडियो ये कैसे करना है उसका वीडियो मैंने आप लोगों के सामने वहां पर डाला हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन with data visualization. I hope you understood the importance of data visualization tool. So let's move on the point that we will cover today. So today I will tell you what is data visualization. I think I have already cleared you. Its need also I have cleared you. Then we'll see various tools for data visualization. One of them we have seen, that is ultimately Google spreadsheet, or Excel can also be one of the solution that we can use. But apart from that, there are so many other tools specially designed for visualization of data that we will discuss. Then we'll focus on Tableau. Why Tableau? Because out of this 2020 10 top tools, Tableau is what it is standing at number 1, and that is the reason we will discuss about the Tableau. And then we'll see that why it is so famous. Then we'll go with architecture of Tableau, Tableau data connection, how we can able to practically use Tableau if we have data available in Excel, how we can able to get connected with that, or data may be available in MySQL, it may be available in PostgRE or any of the database tool. Then we'll see what are the data types which is supported by Tableau. Then we'll focus on desktop version that you can install, and as a student you can use it for 1 year because the 1 year licensing is free, so that you can use. Then we'll focus two major issues, that is dimensions and measures. Once we understood this two, then we can go ahead with what? Tableau. And we will end up with Show Me. So Show Me is one of the beautiful thing that is actually data visualization, so that I will discuss with you all. So let's move why data visualization. I'll go quickly on this because we have seen the importance of that. Data visualization is graphic representations of what? Data. So graphically we can represent data by using either charts or by using either graphs. So the question for you all is that, okay, and that you need to answer to your faculty member, maybe to Kyusra madam, what is the difference between, okay, difference between graph and charts. आप लोगों को ये डिफरेंस ढूंढना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड द चार्ट। ओके, ये आपको जैसे ही समझ में आएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड चार्ट्स। ओके, सो लेट्स मूव on this part, that what exactly data visualization, it is just a graphical representation of your data. ओके, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का बेनिफिट क्या मिलेगा? आप फटाक से डिसीजंस जो भी है वो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने डिसीजन में बताया कि डिवीजन बी इज मोर सिंसियर देन डिवीजन ए। अब कल जाके मुझे कोई बोलेगा सर कैसे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, प्रूव कीजिए, तो मैंने आपके सामने ही एनालिसिस जो भी है वो रख दिया था। ओके, सो प्लीज माइंड वन थिंग, दैट we may analyze data, we may analyze what? Information, because information is simply processed data. Then what is exactly data visualization? So data visualization tools are ultimately what? They are providing accessible way to see and understand the trends, outliers and what the pattern in data. तो पैटर्न आप इस यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आउटलायर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंडिंग क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या ट्रेंडिंग में है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि बी डिवीजन फिलहाल जोरों में है, क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं। आउटलायर यानी क्या? एक आध स्टूडेंट जो हमेशा से एब्सेंट है उसको मैं आउटलायर करके कंसिडर कर सकता हूँ, यदि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एब्सेंटी में होंगे। पैटर्न यानी क्या? किसके साथ में कौन प्रेजेंट रहता है और किसके साथ में कौन गायब रहता है, ये एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो दो दोस्त कौन से है, कौन साथ में एब्सेंट रहता है, ये एनालिसिस में यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। दैट इज अल्टीमेटली व्हाट? पैटर्न। सो दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन टूल. It is ultimately what? It is combination of various visual elements like charts, graphs, and you need to identify the difference between graph and charts. Okay, that you can tell to your faculty member. And the maps that we can use nowadays, maps are actually playing great role. जब भी आपको कोई एनालिसिस करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में ऑनलाइन कनेक्टेड है, यदि मैं आपके लोकेशन भी ले लूं तो मुझे ये पता चलेगा कि अभी कौन कौन से लोकेशन से बैठा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और दो लोग यदि अगल बगल में बैठे हुए हैं या एक ही गांव में बैठे हुए, तो मैं यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ भाई उसका कैसे आ रहा है डेटा कनेक्टिविटी, आपका ही क्यों नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आप हमारे साथ में क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आप हमें नहीं, खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट कैन बी प्रूवन
if I use what the coordinates and if I use maps instead of graphs and charts. So that is also part of data visualization. This is something interesting which is actually very, very important. Even many PhD students can't differentiate between like which graphs to be used to display what kind of information. तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो भी है ये थोड़ा सा दिखने में आप लोगों को टफ जाएगा, बट आई कैन टेल यू दैट सी दैट इट इज वन वेरिएबल ग्राफ, दिस इज टू वेरिएबल ग्राफ. ओके, यहाँ पर और कुछ एडिशनल आइटम्स जो भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, 3 or more वेरिएबल ग्राफ्स. सो ग्राफ्स कैन बी स्टैटिक और इट कैन बी डायनामिक, दैट चेंजेस ओवर द टाइम. ओके, अब आप देखोगे तो मेरा अटेंडेंस जो भी था दैट इज डायनामिक. अभी यदि जब भी अटेंडेंस में लूंगा तो ऑटोमेटिकली डेटा उसमें क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा. सो इट इज चेंजिंग ओवर द टाइम, सो दैट बिकम्स डायनामिक. स्टैटिक यानी क्या, फिक्स. जो इलेक्शन वाला डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया था वो फिक्स है, 1108 लाइक दिस मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, उतने ही रिकॉर्ड्स के साथ में मुझे खेलना है, दैट इज स्टैटिक. दूसरा सिंगल वेरिएबल यानी क्या, मैंने फिलहाल जो भी एनालिसिस किया था दैट वाज बेस्ड ऑन सिटी. किसके ऊपर मैंने बेस्ड ये एनालिसिस किया हुआ था, सिटी के ऊपर. यानी आपको दिखाई दे रहा था कि अमरावती के इतने रिकॉर्ड्स है, नासिक के इतने रिकॉर्ड्स है, महाराष्ट्र के इतने रिकॉर्ड्स, जो भी कुछ था एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन सिटी. ओके, सो सिंगल वेरिएबल एनालिसिस था. टू वेरिएबल एनालिसिस यानी क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग एनालिसिस जो भी कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स. वो कैसे कर सकते हैं, तो आप दो वेरिएबल्स ले लेंगे. जैसे कि आपने बोला कि मुझे सिटी भी चाहिए और मुझे क्या करना है, जिनका सिटी जो है उनका मोबाइल नंबर एज वेल एज उनके ईमेल आईडी के ऊपर भी क्या करना है, एनालिसिस करना है. सो मैंने क्या कर दिया, दो वेरिएबल्स यहां पर कंसीडर किए, एक था मोबाइल नंबर और दूसरा था ईमेल आईडी. तो मुझे काउंट करना है कि कितने ईमेल आईडीज मेरे पास राइट है, कितने मोबाइल नंबर्स मेरे पास राइट है. सो दिस विल बी बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स. सो लाइकवाइज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप जैसे ही बढ़ाओगे, अलग अलग ग्राफ्स आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा दोस्तों. तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक. When I'm talking about dynamic data के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर चार्ट है, लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है. ओके, या फिर कंपैरेटिव लाइन चार्ट्स है, जहां पे एक से ज्यादा आइटम्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो दोस्तों ये सारा चलता है किसके लिए, कंपैरिजन के लिए. तो जब भी आप ग्राफ के बारे में देखोगे तो आपको ग्राफ कौन सी चीजों के लिए काम आता है, एक तो कंपैरिजन दिखाने के लिए, एक तो रिलेशनशिप जो भी है वो दिखाने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, या फिर कंपोजिशन दिखाने के लिए. तो फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया कंपैरिजन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है. दूसरा, रिलेशनशिप के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बबल चार्ट होते हैं और स्कैटर्ड चार्ट होते हैं. तो चार्ट के बहुत अलग अलग क्या है, टाइप्स है. तो फिलहाल यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि स्कैटर्ड चार्ट और बबल चार्ट, ये दोनों रिलेशनशिप जब भी आप लोगों को डिस्प्ले करनी होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. वहां पर भी टू वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल टाइप्स उसके हो सकते हैं. तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, आप सिंगल वेरिएबल के ऊपर इसको कर सकते हैं, टू वेरिएबल्स के ऊपर इसको कर सकते हैं, 3 वेरिएबल्स के ऊपर इसको कर सकते हैं. इसका मीनिंग क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर, जैसे कि हिस्टोग्राम है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि कौन से पर्टिकुलर सिटी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. तो दैट विल गिव यू व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन. यानी क्या, सिटी वाइज स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इवन लाइन हिस्टोग्राम भी होता है. ओके, स्कैटर्ड चार्ट भी इसका एक टाइप होता है. तो स्कैटर्ड चार्ट ये रिलेशनशिप भी डिस्प्ले करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको डिस्प्ले करेगा, और इवन 3D चार्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर क्या होंगे, काम आएंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट वन इज कंपोजिशन. ये कंपोजिशन आपको क्या बता रहा है, आप यहाँ पर देखोगे द चेंजिंग ओवर टाइम एंड स्टैटिक. मींस यहाँ पे भी टाइप्स है, जैसे कंपैरिजन के टाइप थे ना, वैसे यहाँ पर भी टाइप है, स्टैटिक एंड डायनामिक. और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे पाई चार्ट आता है स्टैटिक में, वाटरफॉल चार्ट आता है, ओके, स्टैंडर्ड चार्ट्स आते हैं, कॉलम चार्ट जो भी है वो. या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी डिफरेंट चार्ट, जैसे कॉलम चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर आपको यहाँ पे स्टैटिक चार्ट जो भी है वो, कॉलम चार्ट जो भी है, मींस यहाँ पर लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, इनका मेजर क्या होता है, काम होता है कंपोजिशन में. सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब भी आपको कोई डेटा विजुअलाइज करना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पर्टिकुलर चार्ट में उसको डिस्प्ले करो, नहीं. उसका अपना एक लॉजिक होता है, बेस्ड ऑन दैट लॉजिक आपने उसको क्या करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं समझा है. सो मेरा ये काम था, मैंने आप लोगों को ये बताया. ओके, लेट्स मूव. Why there is need of data visualization? So I have already shown you that when variables are more, it is really tough to visualize data in the form of table. So it is important that we should visualize that particular data in the form of charts, graphs, or we can combine these two and we should display that particular part. That will help us to find
actual values of that particular data. So that is what the need. दोस्तों फास्ट तो नहीं हो रहा है ना ये वाले पार्ट, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूं इसलिए मैं आगे थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, तो आपको समझ में तो आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. श्योर? Yeah, sure, sir. Okay, thank you. So let's move on, like why it is needed. So I have already shown you that without visual representation, it is really tough, to get insights. Insights का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा. कुछ तो इनपुट्स हम लोगों को मिलने चाहिए. बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एनालिसिस कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर यदि मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता था और आपका फेस रीडिंग जो भी आपको कैमरा ऑन करके यदि मैं बोलता हूं और यहां पर ऐसे कॉर्नर में मुझे दिखाई देगा कि आप जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, ओके, यहाँ पर मुझे यदि वो दिखाई देता था कि उनका स्माइली जो भी है या एग्जैक्टली कौन सा उनका फेस है ये मुझे दिखाई देता था, तो आप समझिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता था कि यस स्टूडेंट्स आर हैप्पी, यस स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी. बेस्ड ऑन दैट मैं कितना बोर आपको कर रहा हूँ या मैं कितना इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पर यदि वो मुझे डिस्प्ले हो जाता था कॉर्नर में एनालिसिस करके. ऐसा प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं दोस्तों. कैमरा ऑन कर दिया, ओके, कैमरा ऑन करके क्या किया हम लोगों ने, सभी के जो भी इमोशंस है ओके वो नोटिस किए, यानी आपको बोर हो रहा है राइट, या आप हैप्पी हो या आप अटेंटिव हो, जो भी कुछ है वो नोटिसेस यहाँ पर ले लिए और पता चला कि अभी फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल कितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं ये वाला सेशन, 62 स्टूडेंट. उसमें से मान लीजिए एक ख्यूसरा मैडम एक मैं हूं, यानी 60 स्टूडेंट्स है. और यहाँ पर मुझे पता चलता है कि करीबन 30 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है लेक्चर के लिए. ओके, बाद में पता चलता है कि 20 स्टूडेंट्स जो भी है वो बोर हो रहे हैं और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने जगह पे है ही नहीं, उनका फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है. तो यहां से क्या एनालिसिस निकलेगा दोस्तों, ओनली 50% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन माय लेक्चर, 20 स्टूडेंट्स आर देयर बट दे आर नॉट लिसनिंग टू मी. सो आई कैन थिंक कि मैं उनको पूछ सकता हूं कि दोस्तों एग्जैक्टली क्या चेंज मैंने करना चाहिए जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट जो भी हो फील हो. और बाकी ये 10% ये 10 स्टूडेंट्स जो भी है ये मुश्किल है, ये किसी से नहीं सुधरने वाले क्योंकि अटेंड ही नहीं करना चाहते, इन्होंने तो ज्वाइन किया है और ये यहाँ से गायब हो चुके हैं. सो ऐसा एनालिसिस यदि मेरे पास हर लेक्चर का आएगा तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि कितना यूजफुलनेस इस टीचर इसको हो जाएगा टीचर के लिए. सो दैट इज व्हाट which is possible and this is known as insights, and that is possible to understand. We can able to like grasp any sort of audience and we can identify its true meaning. Now next is data visualization tools. In 2020 there are various data visualization tool. दोस्तों फोकस करें इसके ऊपर, आपको मैं क्वेश्चन जो भी वो करने वाला हूं. ओके, 10 नंबर पर जो था यानी लास्ट नंबर पर जो था जिसका नाम था इन्फोग्राम. ओके, फिर 9 नंबर पर था सेशंस. ओके, 8 नंबर पर था फाइंड रिपोर्ट, 7 नंबर पर था गूगल चार्ट्स, 6 नंबर पर था ग्राफाना, 5 नंबर पर था डुंडास बीआई, देन एडाप्टिव इनसाइट्स, देन पावर बीआई ऑन 3rd नंबर. ऑन 2nd नंबर देयर वाज वॉटाग्राफ्स, ये था. एंड द फर्स्ट रैंकिंग इज टैब्लू. तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को चार्ट विंडो पे लिखना है कि 3rd नंबर का टूल जो भी है वो कौन सा है, विच वॉज द 3rd टूल. चार्ट विंडो के ऊपर लिखना है आप लोगों को. राइट डाउन ऑन चार्ट विंडो कि 3rd नंबर का टूल कौन सा है. मैंने आप लोगों को डिक्रीमेंटल फॉर्म में बताया हुआ है, तो आपको ये बताना है. Come on fast. Almost 15 students have given response. Yes, fast. Good. Go ahead. Very good. Almost 25 students have given response. Come on fast. और आगे 24 पर काउंट रुक चुका है. यस, और कोई 25. कम ऑन फास्ट. 26, 27 और प्लस 4-5 लोग पहले थे, 33, 34, 35.
ओनली 35। इसका मतलब आउट ऑफ 63 कितने स्टूडेंट्स एक्टिव है? ऑलमोस्ट 36। उल्टा ही हो गया नंबर, 63 एंड 36। तो दोस्तों इससे समझ में आता है, ये बीच में इन बिटवीन आप लोगों को इसलिए पूछना पड़ता है कि कितने लोग जगह पे है, कितने लोग सीरियस है, कितने लोग सुन रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, जिन लोगों ने भी आंसर दिया है। यस, राइट आंसर इज पावर BI. Okay, so this is again one of the fabulous tool that you can study, but today we will study number one tool, that is ultimately Tableau. So let's have a discussion on what Tableau. What is Tableau? So Tableau, it is found